Hello students, here we are once again with JPIC History. Students, today in this video we are going to learn about the first chapter of Snapshot Supplementary Reader, which name is The Summer of the Beautiful White House, written by William Saroyan, who was a famous novelist and story writer of America. He was known as a playwright who wrote many plays. He was born in California, USA in 31st August 1908 and was died in California too in 18th May 1981. He had married to Carol Marcus, a beautiful lady, and was an actress. He had two children. The son was Aram and the daughter was Lucy Saroyan. He had written many plays, and some of the great plays are the Armenian in 1935, My Horse in the Highlands 1939, The Times of Your Life 1939, My Name is Aram 1940, and The Human Comedy 1943. He had got the well-known award, Academy Award for Best Short Story, which name was The Human Comedy. And he also got the Pulitzer Prize for Drama. He was a very good person and a good writer. The prescribed story, The Summer of the Beautiful White House. There were two main characters in the story. One is Aram and second was his cousin brother Murad. Aram is very fond of horse riding. So Murad, his cousin brother, wants to give him the enjoyment of horse riding. What they do to fulfill their desire, how they suffered to fulfill their desire, how they enjoy it, we are going to learn in this very story. So let's read the story and know what happened with Aram and his cousin Murad. Let's read. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. One day back there in the good old days when I was 9. राइटर कहता है कि यह उन दिनों की बात है जब मैं 9 वर्ष का हुआ करता था and the world was full of every imaginable kind of magnificence. और जो उस समय की दुनिया थी हर प्रकार की भव्यता से परिपूर्ण थी, यानी हर एक सुख सुविधा की चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और जीवन क्या था? जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपने के समान था. माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी. और मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको कि परिचित लोग क्या कहा करते थे? क्रेजी, यानी सनकी कहा करते थे. हु न्यू, जो जानते थे हिम उसे, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, केम टू माई हाउस, मीन्स मेरे अतिरिक्त उसे जानने वाले हर एक व्यक्ति उसे सनकी कहा करते थे. केवल मैं ही ऐसा था जो मैं नहीं कहता था उसको. हु वॉज टू माई हाउस, केम टू माई हाउस एट 4. वह 4 बजे सुबह मेरे घर आया एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया. टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे घर की खिड़की पर ठोकर करते हुए. Aram, he said, उसने कहा. Aram, I jumped out of bed and looked out of the window. उसकी आवाज़ सुन करके
मैं झटके के साथ अपने बिस्तर से नीचे उतरा और मैंने खिड़की की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ। मैं उस बात पर भरोसा नहीं कर सकता था जो मैंने वहाँ देखा था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। अभी सुबह भी नहीं हुई थी। इट वॉज समर, गर्मियों का मौसम था, एंड डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, और थोड़ी ही देर में, डे ब्रेक मीन्स सुबह होने को थी, भोर का समय था और अभी जल्दी ही सुबह होने वाली थी। एंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। और वह कहते हैं कि वह एक ऐसा समय था, उस समय इतना प्रकाश मौजूद था कि मैं यह इमेजिन कर सकता, मैं यह कल्पना कर सकता था कि मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं वास्तविक दुनिया में जी रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ वो मेरी वास्तविक आंखें देख रही हैं। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। क्या देखा मैंने कि मेरा चचेरा भाई मुराद एक खूबसूरत, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। मैंने खिड़की के बाहर अपना सिर निकाला, मैंने खिड़की से अपना सिर बाहर करके झांका और मैंने अपनी आंखें क्या की, रब की, मली। यस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में जवाब दिया था। जब मैंने पूछा मुराद, तो उसने आर्मेनियन भाषा में जवाब दिया, हाँ। इट्स अ हॉर्स यू आर नॉट ड्रीमिंग, यह घोड़ा ही है और तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। मुराद ने कहा कि शीघ्रता करो, जल्दी करो, अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो, इसकी सवारी का मज़ा लेना चाहते हो तो जल्दी करो। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being live more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. I know better, मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मेरा भाई जो मुराद था वह अपने जीवन का आनंद इस दुनिया में मौजूद किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लेना चाहता था। मीन्स वह अपने जीवन को इंजॉय करने वालों में से था। एंड in the first place my earliest memory had been memories of horse, and my first longing had been longings of ride. And the writer said that he was longed for the horse riding. वो कहता है कि मेरी जो यादें थी वह हमेशा घोड़ों से, मेरा लगाव जो था वह मेरी यादों से जुड़ा हुआ था। मैं घोड़ों को पसंद करता था और हमेशा अपने जीवन में मैं घोड़ों की सवारी का आनंद उठाना चाहता था। मेरी इच्छा भी यही थी कि मैं घुड़सवारी करूं। एंड दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और यह मेरे लिए एक अद्भुत बात थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात क्या थी कि हम सभी गरीब थे। पहली बात तो यह थी कि मुझे घोड़ों से लगाव था, और दूसरी बात यह थी कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और यही कारण था ये कि मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी जो पूरी जनजाति थी वह गरीबी की समस्या से जूझ रही थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वह कहते हैं कि जो हमारा सारा समुदाय था वह गरीबी की समस्या से ग्रस्त था, और जो गार्गोलियन फैमिली थी वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और जो गार्गोलियन फैमिली थी वह इस दुनिया की सबसे हास्यास्पद अद्भुत गरीबी में जी रहा था। हमारा समुदाय
Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Nobody could understand means कोई भी यह नहीं जान सकता था, कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि हम अपनी वेली को शांत करने के लिए मीन्स अपना पेट भरने के लिए कहाँ से अपने भोजन के लिए धन का अर्जन करेंगे, कहाँ से हम धन कमाएंगे और इतना धन कमा लेंगे, पर्याप्त धन कमाएंगे कि हम अपनी पेट की आग को शांत कर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यही स्थिति न केवल एक छोटे बच्चे की बल्कि घर का जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता था, सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति था, उसके लिए भी यही बात थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों के लिए थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, और वह कहते हैं कि लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के कारण ही प्रसिद्ध रहे थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, उस समय भी जब हम इस मौजूदा संसार में सबसे अधिक धनी परिवारों में से एक हुआ करते थे, उस समय से लेकर 11 शताब्दियों तक हम लगातार ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। हम ईमानदार परिवार, ईमानदार समुदाय के व्यक्ति थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। वह कहते थे सबसे पहली चीज़ क्या थी, हमारा स्वाभिमान था, दूसरी चीज़ हमारी ईमानदारी थी, और तीसरा अच्छे और बुरे की परख थी, भरोसा था। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. And writer wants to say, वह कहता है कि चोरी करने की बात तो जाने दीजिए, हमारे समुदाय का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अवसर का लाभ भी नहीं उठा सकता था। वह इतना ईमानदार था कि अवसर मिलने पर किसी व्यक्ति से वह लाभ भी नहीं ले सकता था, चोरी की बात तो दूर है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. No member of the Gargalian family could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said. If you want to ride, it was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not, as I chose. Consequently, even though I could see the horse, यद्यपि मैं उस घोड़े को देख सकता था, so magnificent, वह कितना शानदार था, वह बड़ा ही सुंदर और शानदार घोड़ा था। Even though I could smell it, और मुझे उसकी गंध भी आ रही थी, मैं उसको महसूस कर पा रहा था। so lovely, कितना प्यारा था वह। Even though I could hear it breathing, मैं उसकी सांसों का भी अनुभव कर सकता था। so exciting, कितना उत्सुकता भरा, कितना उत्तेजना भरा हुआ था। I could not believe the horse had anything to do with my cousin. मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे भाई को यह घोड़ा कहाँ से मिला, वह कैसे इसको पाया। or with me or with any of the other members of our family. मुझे यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह घोड़ा मुराद का है या मेरे परिवार, मेरे समुदाय में से किसी और का है। asleep or awake because I knew, मैं यह भी नहीं क्लियर कर पा रहा था, स्पष्ट कर पा रहा था कि मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ, क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मुराद कांट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं यह जानता था कि मेरा भाई उस घोड़े को खरीद सकने में सक्षम नहीं है, वह नहीं खरीद सकता था।
एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और अगर उसने इसको नहीं खरीदा था, देन इट मस्ट हैव स्टोलन इट, तो अवश्य ही इसने उसको कहीं से चुराया था। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात को नकारना चाहता था, इस बात से छुटकारा न पाना चाहता था कि उसने चुराया होगा, क्योंकि हमारे समुदाय में चोरी करना कोई आम बात नहीं थी। हर एक व्यक्ति हमारे समुदाय का बहुत ही ईमानदार था, चोरी करना उनके स्वभाव में ही नहीं था। नो मेंबर ऑफ द गार्गलेनियंस के फैमिली कुड बी अ थीफ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था इसलिए क्योंकि हमारे गार्गेनियन समुदाय का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, सबसे पहले तो मैंने अपने भाई अपने कजिन मुराद की ओर घूरा, एंड देन एट द हार्स, और तब मैंने घोड़े की ओर निगाह घुमाई। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों के अंदर मुझे एक पवित्र निश्चलता दिखाई पड़ती थी। पायस मीन्स लाइक अ नेक्टर, एक अमृत के समान पवित्रता और निश्चलता का भाव में मुझे दोनों के अंदर दिखाई पड़ रहा था। एंड विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, और जिससे एक और मुझे प्रसन्नता हो रही थी, ऑन द अदर हैंड फ्राइटेड मी, तो दूसरी ओर उसके न खरीद सकने की, उस घोड़े को न खरीद सकने की स्थिति के कारण मुझे डर भी था। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, उसने कहा कि अगर तुम्हें इसकी सवारी करना है तो खिड़की कूद करके बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन, उस समय यह सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इस बात पर कोई इफ बट नहीं था, कोई शंका नहीं थी। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, और इसीलिए वह मुझे बुलाने आया था, मुझे आमंत्रित कर, मैं सिलेक्शन करूं जैसा मैं चाहूं। Dear students, read till here with the help of this video. We will meet with the next part of this lesson in the next video. Till then, thanks.